Good morning, students. Today we are going to study our seventh chapter of science, clothes. So, in this chapter, we will study about the clothes. What are clothes? Why do we need clothes? Uh, uh, of which clothes are made up of? All these things we will study in this chapter. So, here we will study first clothes our need. He means why do we need our clothes? Sources of fibers. How do cloths form? From which fiber? As we all know, cloths are formed from fibers. So from which fibers cloths are formed? Cultural cloths. And what are cultural cloths? Special cloths, and how to take care of cloths and why it is needed to take care of cloths. All these things we are going to study in this chapter. The three basic needs of human beings are food, shelter, and clothes. Food is essential for our survival, while shelter and clothes protect us from changing weather conditions and many other things. As we all know, for human beings, means for us, there are three essential things, or we can say that there are three basic things which we need, and that are food, shelter, and clothes. And food is essential for our survival, while shelter and clothes protect us from changing weather conditions and many other things. If we want to remain alive, so we need food, and if we want to protect us from cold, heat, or uh, any other changing weather conditions, so we need cloth and shelter. तो ओके, कहने मतलब ये कि हमारे जीवन की तीन बेसिक चीजें होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, और कपड़ा और मकान हमें मौसम के बदलते प्रभाव से बचने के लिए चाहिए। कि जैसे ठंडी है तो अभी देखिए हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, जिससे हम ठंडी से अपने आप को बचा पाते हैं। गर्मी है तो हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, जिससे हम गर्मी में खुद को बचा पाते हैं। गर्मी लगने से खुद को बचा पाते हैं। बरसात होती है तो हम रेनकोट को पहनते हैं, ठीक। और रेनकोट और रेनकोट को हम रेनी सीजन में पहनते हैं बरसात से बचने के लिए। इस तरह अलग अलग सीजन में हम लोग अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं अपने आप को मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए। तो इसलिए क्लॉथ भी हमारी क्या है, बेसिक नीड है। नेक्स्ट, अब क्लॉथ्स क्यों बेसिक नीड है, जैसा कि मैंने बताया, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। ओके, and good clothes make us look smart too. Secondly, they when on different occasional functions we wear different types of clothes, so the clothes help us to look smart also. So in looking smart we need clothes, ठीक। People living in different parts of the world wear different types of clothes depending upon the weather conditions and the culture of the place where they live. Also, uh, in the world, this world is so big, and in the world, um, different types of people live, and they wear different types of clothes depending upon their weather conditions and the cultural place where they live. It means विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, और वो सब अलग अलग कपड़े पहनते हैं अपने अपने वेदर कंडीशंस और अपने अपने कल्चर के हिसाब से। इस बात को हम जानते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द समर सीजन वी वियर कॉटन क्लॉथ, दे ऑब्जॉर्व स्वेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन। जैसे कि हमारे यहाँ पे समर में हम क्या करते हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया था, हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। और क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारे पसीने को एब्जॉर्व करते हैं और हमें सूरज की गर्मी से बचाते हैं, ठंडक देते हैं। फिर विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, मतलब ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं, ठीक। वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठंड नहीं लगने देते हैं। तो इसलिए जैसे अभी ठंड में हम लोग क्या पहन रहे हैं, वुलन क्लॉथ्स पहन रहे हैं। फिर व्हेन वी गो आउट इन रेन वी यूज अम्ब्रेलास और वियर रेनकोट्स और गम बूट्स। जब हम बाहर बरसात में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अम्ब्रेलास का यूज करते हैं, या रेनकोट्स पहनते हैं, या गम बूट्स का यूज करते हैं, ठीक। और और जो रेन कोट्स हैं ये
वाटर प्रूफ मटेरियल से बने हुए होते हैं, जिससे हम गीले नहीं होते हैं। तो बरसात में बचने के लिए हम रेनकोट या अम्ब्रेला या गम बूट्स का यूज करते हैं। गम बूट्स क्या है, जो बड़े बड़े जूते होते हैं फाइबर के, जिन वाटर प्रूफ होते हैं, जो पहनते हैं जिससे हमारे पैर गीले नहीं होते हैं। फिर in ancient time people used to cover their bodies with barks and big leaves of trees or animal skin and fur। पुराने समय में लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी को पेड़ों की छाल से या बड़े बड़े पत्तों से या जानवरों की स्किन या फर से अपनी बॉडी को ढकते थे। ठीक है। ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स एंड स्टिच देम इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, फैब्रिक से उन्होंने फाइबर फाइबर से फैब्रिक बनाना सीखा और उससे फिर अलग अलग टाइप्स की ड्रेसेस को सिलना सीखा। ठीक, इस तरह से फिर कपड़ों का विकास हुआ। अब फाइबर के सोर्सेस क्या है, तो ये तो हमें पता चल गया कि कपड़े किससे बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। अब फाइबर के सोर्सेस क्या कहाँ कहाँ से हैं, तो कपड़े अलग अलग मटेरियल या फैब्रिक से बनते हैं। ठीक, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स और फैब्रिक्स। फैब्रिक्स आर मेड बाय वीविंग और निटिंग फाइबर्स टुगेदर। और फैब्रिक्स बनाए कैसे जाते हैं, जो फाइबर्स होते हैं उनको निट करके या वीव करके साथ में फैब्रिक्स बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर उससे कपड़े सिले जाते हैं। फाइबर्स आर लॉन्ग थिन थ्रेड्स। फाइबर्स क्या है, एक जो लंबे और पतले धागे का रूप होते हैं। ठीक है। दे कैन बी आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। ये नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें मतलब नेचर से भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। ठीक, और ये सिंथेटिक भी होते हैं, मीन्स इनको ये मैनमेड भी हो सकते हैं। ओके। सो नाउ नेचुरल फाइबर। सो अभी हमने पढ़ा कि क्लॉथ्स किससे बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। तो फाइबर दो प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल भी सिंथेटिक भी। तो नेचुरल फाइबर्स क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। तो the fibers either obtained from plants or animals are called natural fibers। that means कि the fibers we get from plants or animals are called नेचुरल फाइबर्स। मतलब जो हम फाइबर हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ये सब क्या है, प्लांट फाइबर्स हैं। ऑन द अदर हैंड वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। मीन्स cotton, jute, flax, these all we get from plants, and wool, silk, these we get from animals. So these are animal fibers. Wool we get from sheep, silk we get from cocoon, and natural fibers, cotton, jute, flax. Cotton we get from cotton plant. Likewise, jute also. Likewise, flax also we get from plants. So these are called plant fibers, and these are called animal fibers. Now synthetic fibers. So fibers produced by chemical process in factories are called synthetic fibers। The fibers which are made by man through chemical process in the factories are called synthetic fibers। ऐसे फाइबर जो आदमी बनाते हैं कहाँ पे, फैक्ट्रियों में, केमिकल प्रोसेस से। ठीक, उनको क्या कहते हैं, हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है नाइलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, acrylic, all these are synthetic fibers। Okay। Most fabrics made from synthetic fibers are strong and last long। ज्यादातर जो फैब्रिक्स होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बनते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। ठीक है, एंड केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, इसलिए वो स्ट्रांग और लंबे समय तक चलते हैं। दे आर स्ट्रेचेबल एंड व्रिंकल फ्री। ये स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब इनको हम खींच भी सकते हैं, लचीले होते हैं, और व्रिंकल फ्री होते हैं। व्रिंकल फ्री मीन्स कि ये सिकुड़न इनमें नहीं पड़ती है जल्दी। देखा होगा जैसे टेरिकॉट, नाइलॉन, इनके कपड़ों में सिकुड़न कहाँ पड़ती है, आप धुल के सुखाओ वैसे ही पहन लो विदाउट आयरन किए। ठीक, तो क्यों, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। ऑल्सो दे ड्राई वेरी क्विकली। और साथ साथ में ये जल्दी ही सूख जाते हैं। जैसे कि देखो, एक कॉटन के कपड़े को आप धूप में सूखने के लिए डालो और एक टेरिकॉट या नायलॉन के कपड़े को सूखने के लिए डालो, तो नायलॉन कपड़ा जल्दी सूखेगा क्योंकि उनकी टेंडेंसी है। ठीक, फिर कल्चरल क्लॉथ्स। अब व्हाट आर कल्चरल क्लॉथ्स, तो द क्लॉथ्स
जो हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब जैसे कि अलग अलग देश में, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग रहते हैं, तो वो अपने अपने कल्चर, उनका कल्चर अलग होता है, ठीक है, दे फॉलो दे डिफरेंट कल्चर, तो वो अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और इन्हीं क्रॉस को हम क्या कहते हैं, कल्चरल क्रॉस, अपनी संस्कृति के हिसाब से कपड़ों को पहनना, ठीक। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स wear different types of cloth depending upon the climate and cultural tradition of the region. For example, the dress of people living in Kerala will be different from that of people living in Jammu and Kashmir. जैसे कि एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि जो केरला के लोगों का ड्रेस होगा वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की ड्रेस से अलग होगा। केरला के लोग अलग ड्रेस पहनते हैं क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का वेदर कंडीशंस अलग हैं, और जम्मू कश्मीर की वेदर कंडीशंस और जम्मू कश्मीर का कल्चर अलग है, तो इसलिए दोनों की ड्रेसेस में भी क्या होता है, अंतर होता है। केरला के जो लोग हैं वो मुंडू ड्रेस पहनते हैं और नेरियाथू ड्रेस पहनते हैं, जबकि वेयर एज पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वियर अ थिक लॉन्ग ड्रेस कॉल्ड फिरान। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग एक थिक और लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं जिसको फिरान कहते हैं। तो ये उनकी कल्चरल ड्रेसेस हैं, केरला के लोगों की मुंटू और निरियाथू, और जम्मू कश्मीर के लोगों की लंबी और मोटी ड्रेस फिरान। तो ये इनके कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेस है जो वहाँ के लोग पहनते हैं। सम ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैव ऑल्सो बिकम नेशनल ड्रेसेस। इनमें से जो कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, सांस्कृतिक ड्रेसेस हैं, ये नेशनल ड्रेसेस भी बन गई हैं। साड़ी इज द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन। जैसे कि जो साड़ी है वो नेशनल इंडियन वुमेन की नेशनल ड्रेस हो गई है, ठीक। फिर किमोनो इज द नेशनल ड्रेस ऑफ जापानीज वुमेन। उसी प्रकार जापानीज वुमेन की जो नेशनल ड्रेस है वो क्या है, किमोनो है। एंड हैंडबुक इज दैट ऑफ कोरियन वुमेन। और कोरियन वुमेन की जो ड्रेस है वो हैंडबुक है। तो इस तरह से कुछ ड्रेसेस जो हैं वो नेशनल ड्रेसेस भी बन गई हैं। जैसे हमारे भारत में औरतों के लिए साड़ी होती है, ठीक। तो औरतों की नेशनल ड्रेस क्या है, साड़ी है। उसी प्रकार जापान में किमोनो है, कोरियन में हैंडबुक है, ये सारी चीजें। नाउ स्पेशल क्लॉथ। स्पेशल क्लॉथ क्या है, तो ऐसे कपड़े जो हम अपने जॉब या अपने प्रोफेशन के लिए पहनते हैं, ठीक है। द पीपल वियर स्पेशल क्लॉथ्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस और अकॉर्डिंग टू देयर जॉब और प्रोफेशन। हम जब किसी स्पेशल काम के लिए पहनते हैं या अपने जॉब या प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं। जैसे आप स्कूल ड्रेस जाते होंगे तो आपकी यूनिफॉर्म अलग रहती होगी, घर पे रहते हैं तो आपकी यूनिफॉर्म अलग रहती है, ठीक। आप पापा ऑफिस जाते होंगे तो अलग कपड़े पहनते होंगे, घर पे अलग कपड़े। तो वो एक अकॉर्डिंग टू पर्पस की, जब ऑफिस जाना है तो अलग कपड़े, ठीक है। स्कूल जाना है आपको तो आपकी यूनिफॉर्म अलग। तो इस तरह हम अपने जॉब या अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कपड़ों को पहनते हैं, यही क्या कहलाते हैं, स्पेशल क्लॉथ्स कहलाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर्स वियर ब्लैक कोट्स। जो लॉयर्स होते हैं, वकील, वो ब्लैक कोट्स पहनते हैं। हम दूर से ही देख के पहचान सकते हैं उनको कि वो लॉयर है। तो हम ड्रेसेस से भी लोगों को पहचानते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर एंड नर्सेस वियर वाइट कोट्स। डॉक्टर और नर्स क्या करते हैं, वाइट कोट्स पहनते हैं जिसको हम एप्रन कहते हैं, ठीक है। तो हम यदि कोई डॉक्टर जा रहा हो तो अपना उससे, उसकी ड्रेस से हम उसको पहचान सकते हैं। तो लोगों को की ड्रेस से हम उनके प्रोफेशन, उनके काम को भी पहचान सकते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक। तो जैसे जो स्टूडेंट है वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो कोई किसी भी बच्चे को हम यदि देखेंगे वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने होगा तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट है, ठीक। तो वो कपड़े हमें बाकियों से अलग करते हैं, ठीक। स्पेशल क्लॉथ डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल, कि बाकी जो लोग हैं उनसे हमें अलग करते हैं, अलग शो करते हैं। हम उनको उनके जॉब को, उनके प्रोफेशन को उनके कपड़ों से भी पहचान सकते हैं। तो स्पेशल क्लॉथ्स ये हैं। नाउ टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की देखभाल करना। तो वी शुड वियर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स। हमें हमेशा कपड़ों को साफ करके रखना चाहिए और उनको आयरन करके ही पहनना चाहिए। साफ और आयरन कपड़े ही पहनना चाहिए, ठीक। कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स टू कीप देम इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें अपने कपड़ों की प्रॉपरली देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, उनकी, ताकि वो लंबे समय तक चलें, अच्छी कंडीशन में रहें। कपड़ों की देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होंगे, फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक हम उनको पहन नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनको प्रॉपरली केयर करनी चाहिए हमें।
ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक चलें, लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहें। सम स्टेप्स टू टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स आर एज फॉलोज। कपड़ों की देखभाल करने के लिए कुछ जो स्टेप्स हैं वो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। पहला, क्लॉथ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली विथ अ गुड क्वालिटी डिटर्जेंट और सोप। कपड़ों को अच्छे से हमें धुलना चाहिए और धुलने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट या साबुन यूज़ करना चाहिए। ऐसा साबुन यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल हो या जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो, उससे हमारे कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट और सोप यूज़ करना चाहिए जो सॉफ्ट हो कपड़ों के फाइबर के लिए, और प्रॉपरली धोना चाहिए उनको। ठीक। डार्क कलर क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन शेड एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन द सन। जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, इस तरह के डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं, इनको हमेशा हमें छाया में सुखाना चाहिए। ठीक। और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स को हमें हमेशा धूप में सुखाना चाहिए। जो डार्क कलर के क्लॉथ्स हैं, डार्क कलर क्लॉथ्स को हमें छाया में इसलिए सुखाना चाहिए क्योंकि उनका कलर डार्क होता है, तो धूप में सुखाने से उनका कलर उड़ जाता है, तो इसलिए उनको छाया में सुखाना चाहिए। और जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स हैं उनको हम धूप में सुखा सकते हैं। नेक्स्ट, woolen और silk cloths are very delicate. They should be either dry, cleaned or washed with mild detergent. जो woolen और या silk cloths होते हैं ये बहुत delicate होते हैं, soft होते हैं, इसलिए उनको या तो dry wash कराना चाहिए हमें, या बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट से, सॉफ्ट डिटर्जेंट से उनको साफ करना चाहिए। ठीक है, वुलन क्लॉथ्स की। फिर, while keeping woolen और silk cloth, dried neem leaves और naphthalene balls should be kept in them. जब हम ठंडी का मौसम खत्म हो जाए तो वुलन या सिल्क क्लॉथ को हम यदि रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो उनमें नीम लीव्स या नेप्थिलीन बॉल्स को उनमें रख देना चाहिए हमें। ठीक है, ताकि उनसे उनमें कीड़े वगैरह ना लगे, मॉथ्स वगैरह ना लगे। ठीक, इन सारी नीम से रखने से या नेप्थिलीन रखने से क्या होता है, कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। कॉटन क्लॉथ शुड बी आयरन बिफोर वियरिंग। और कॉटन क्लॉथ जो होते हैं पहनने से पहले हमें क्या करना चाहिए, आयरन कर लेना चाहिए। ठीक है। वी शुड मेंड क्लॉथ्स दैट आर टॉर्न और हैव ब्रोकन बटन्स बिफोर वियरिंग। ठीक, हमें अपने कपड़ों को मेंड कर लेना चाहिए, मतलब सुधार लेना चाहिए, रिपेयर कर लेना चाहिए। जिन जो हल्के से फट गए हैं तो उनको सिल लेना चाहिए, या जिनके बटन्स टूट गए हैं उनको जोड़ लेना चाहिए। ठीक, तो इन सारे मेथड से हम अपने कपड़ों की देखभाल कर सकते हैं। तो इन दिस वे आवर chapter gets finished. Okay, hope you all understood. And if you have any doubt related to the chapter or any problem related to the chapter, you can comment in our comment section, and you will be provided with the solution. Thank you everyone. Goodbye, take care.